नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् श्रीओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 71 નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। આચાર્ય ભગવાનની 71મી ગાથા, એનો અન્વયાર્થ, એની ટીકા અને એક ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ આપણે કર્યો છે। शेष भाग लईए ते पहला सहज पुनरावर्तन करीए छीए। आजे आगळ 72મી गाथा नहीं शरू करता, आज 71મી गाथानो विस्तार पूरो करीशुं। हवे 71મી गाथा सुधी आपणे आव्या छीए तो सहज पुनरावर्तन ए रीते करवुं छे के 67મી गाथाथी भेद ज्ञाननी वात शरू थई छे અને એ 75મી ગાથા સુધી એ વાત આવશે। એટલે 9 ગાથાની અંદર ભેદ જ્ઞાનની વાત કરવામાં આવી છે। આત્મા બીજા બધાથી જુદો છે એ વાત કરી છે। 67મી ગાથાનો આપણે વિચાર કરીએ તો 67મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે આત્મા આત્મા જ છે અને પર પર જ છે। આત્મા પરદ્રવ્ય નથી અને પરદ્રવ્ય કોઈ સમયે आत्मापणे परिणमतुं नथी। आत्मा आत्मापणे ज परिणमे, जीव जीव रूपे ज परिणमे। ए जड़ रूपे क्यारेय थाय नहीं, क्यारेय जड़ रूपे एनुं परिणमन पण न थाय। अने परद्रव्य, ए परद्रव्य जे छे एमां 6 द्रव्यनो विचार करी तो 6 द्रव्य स्वतंत्र पोते पोताथी ज परिणमी रह्या छे। अने एमां बीजा जीव द्रव्य लईए तो ए पण पोते पोताना द्रव्य क्षेत्र काल भावमां रहीने परिणमी रह्या छे ने आ जीव पण पोते पोताना द्रव्य क्षेत्र काल भावमां रहीने परिणमी रह्यो छे। एटले कोई कोई रूप छे नहीं। आ आत्माथी बधा जुदा छे, भिन्न छे। ए 67મી गाथामां वात आवी। आगळ 68મી गाथानी अंदर पछी ए वात लीधी के शुद्ध निश्चयथी आत्मा जन्म मरण बंध तथा मोक्षने पण करतो नथी। जन्म ने करतो नथी, मरण ने करतो नथी, बंध ने करतो नथी ने मोक्ष ने पण करतो नथी। आत्मा ए अपेक्षाए निष्क्रिय छे, कांई करतो नथी। ए बंध करे एम पण नहीं अने बंध नथी तो पछी मोक्षनी क्या वात रही। जे अबंध छे, जे मुक्त स्वरूप ज छे, एने पछी मुक्त थवानी क्या वात ज छे। एटले ए बंधने पण करतो नथी अने मोक्षने पण करतो नथी। ए उत्पन्न पण थतो नथी अने एनो नाश पण थतो नथी। अविनाशी छे, अनंत काळथी पोते छे, अनंत काळथी छे अने अनंत काळ सुधी रहे एवुं वस्तुनुं स्वरूप छे। ए 68મી गाथामां आत्मानी ए रीते वात करी अने एनो घणो विस्तार आपणे गुरुदेव पासेथी समज्या। ते पछीथी आत्मा सर्व विकारोथी रहित छे, बंधथी रहित छे एम कह્યું એટલે બંધ કરતો નથી। એટલે કર્म જે છે તો એને છે નહીં, જડ કર્મ નથી અને ભાવ કર્મય નથી, કેમ કે ખરેખર એ કર્મને કરતો નથી, પોતે તો સ્વભાવ ભાવે પરિણમે છે। એટલે અહીંયા ભાવ કર્મની અપેક્ષાથી વિચાર કરીએ તો 69મી ગાથામાં એ વાત લેવી કે જે ભાવ કરે છે એ ભાવ આશ્રવ છે અને ભાવ આશ્રવ થાય છે તો એનું નિમિત્ત પામીને જડ કર્મને રજકણો બંધાય છે અને દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે। પણ અહીંયા તો કહે છે કે એવા ભાવ આશ્રવ પણ આત્માને નથી, એટલે કે એને કોઈ વિકાર નથી।
એને કોઈ વિકાર નથી, વિકારોથી રહિત છે. અને વિકારોની બાબતમાં તો ખૂબ મોટું વર્ણન કરી દીધું, લાંબુ લિસ્ટ બનાવી દીધું. આપણને લાગે કે લાંબુ લિસ્ટ કઈ રીતે? જરાક વિચાર કરીએ તો એમાં બધું સમાવી લીધું. જીવને થતા બધા પ્રકારના ભાવોને અહીંયા સમાવી લીધા. કહે છે કે એ જીવ આત્માને જન્મ નથી, જરા મરણ અને વ્યાધિ પણ નથી, લિંગ નથી, વર્ણ નથી, તથા કોઈ પ્રકારની આકાર આદિ સંજ્ઞા પણ નથી, અથવા નામ આદિ સંજ્ઞા પણ નથી, એમ તું જાણ. એ રીતે 69મી ગાથામાં તો બધું જ સમાવી લીધું કે જે એક પણ વસ્તુ આત્માને નથી, અને એ બધી વસ્તુ આત્માને નથી તો પછી આત્મા શુદ્ધ છે, આત્મા શુદ્ધ છે એ વાતનો ખ્યાલ આવી જાય છે. આમ ભેદ જ્ઞાનમાં જ્યારે બધા ભાવને લઈ લીધા, આ જન્મ જરાના ભાવ છે, વ્યાધિ ઉપાધિના પણ ભાવ હોય છે, આ લિંગ છે એવો પણ ભાવ છે, આકાર સંજ્ઞા આ બધો ભાવ છે, એ આત્માને નથી. એ કોઈ ભાવ આત્માને છે જ નહીં, એક પણ ભાવ આત્માને નથી. એટલે જડ કર્મ નથી, અને સાથે સાથે એમ કહેવાય કે આવા કોઈ વિકારી ભાવ પણ નથી, એટલે એને ભાવબંધ પણ નથી, એવો આત્મા શુદ્ધ છે. અને પછી 70મી ગાથાની અંદર આ બધું આત્માને નથી તો પછી કોનું છે એનો જવાબ આપ્યો. શુદ્ધ નથી, ઉપરોક્ત વિચારો જીવના નથી તો કોના છે? તો 70મી ગાથામાં પછી એમ કહ્યું કે એ દેહના છે. એટલે કે છે કે એ શિષ્ય દેહને જન્મ જરા તથા મરણ છે, દેહને અનેક પ્રકારના આ વર્ણ છે, શ્વેત આદિ અથવા તો બ્રાહ્મણ આદિ વર્ણ છે, દેહને રોગ છે, અને દેહને અનેક પ્રકારના આ લિંગ છે, સ્ત્રી પુરુષ આદિ લિંગ અથવા તો આ મુનિનું લિંગ, એવા લિંગ છે, એ બધું દેહનું છે. અને એ દેહથી જુદો તું ભગવાન આત્મા છો. એટલે આત્માને એમાંનું કાંઈ નથી. જો ભેદ જ્ઞાનની કેટલી ઊંચી વાત અહીંયા લઈ લીધી છે, એક પછી એક ગાથામાં 67, 68, 69, 70 ગાથા સુધીમાં, તો આવું આત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવી અને એનાથી બીજું બધું જુદું છે એવું સવિકલ્પ દશાની અંદર ભેદ જ્ઞાન આચાર્ય ભગવાન કરાવે છે. અને પછી આગળ 71મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે દેહના જન્મ મરણ આદિ જોઈને એ જીવ તું ભય પામીશ નહીં. એમ તો કહ્યું કે એ બધા દેહના છે, પણ સાથે એ વાત પણ સમજાવી કે એ દેહના છે એને ને તારે કાંઈ સંબંધ નથી. એ જીવ દેહના જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા મરણ જોઈને ભય પામીશ નહીં. જે અજર અમર પરમ બ્રહ્મ શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેને તું આત્મા જાણ. કેમ કે એ બધું દેહનું છે અને એને જોઈ અને તું ભય નહીં પામ, કેમ કે તું એમાં નથી, એ તારામાં નથી, એ રૂપે તું નથી. તું તો પરમ બ્રહ્મ શુદ્ધ સ્વભાવ માત્ર છો, જેને કાંઈ વૃદ્ધાવસ્થા નથી, જન્મ નથી, મરણ નથી, કાંઈ નથી, બીજા વિભાવ ભાવ નથી. એવો એ અજર અમર પરમ બ્રહ્મ શુદ્ધ સ્વભાવ એ જ તું છો. એટલે કે એ આત્મા છે એટલે તું છો, એવો આત્મા તું છો, તેને તું આત્મા જાણ. અને હજી તો આગળ 73, 73, 74 ને 75 ગાથા સુધી આ ભેદ જ્ઞાનની વાત કરશે. આપણે 71મી ગાથા ચાલે છે, એનો વધુ વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ બીજો, વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 272. महान उसको यहाँ परमात्मा कहते हैं. अपना आत्माओं बड़ा शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है.
निमित्त से भिन्न है, व्यवहार का राग से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा भगवान शुद्धात्मा उत्कृष्ट अपनी लक्ष्मी संपन्न, ऐसा तू अपना स्वभाव जान, ऐसा तू अपना स्वभाव, अनंत आनंद अनंत ज्ञान, अनंत शांति अनंत प्रभुता, ऐसी तेरी लक्ष्मी अंदर है। ऐसा अपना स्वभाव जान। निमित्त को जान ऐसा नहीं कहा, राग को जान ऐसा नहीं कहा, पर्याय को जान ऐसा नहीं कहा। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का रस से भरा पड़ा है। जिसका सन्मुख देखकर, जिसकी सन्मुख देखकर जो आनंद आता है, ये आनंद अगर इंद्रोना इंद्रासन इंद्रना भोग सड़ा तृणा जैसा लगे। समझ में आया? क्रूरो इंद्राणी जेने अनाजना खोराक नहीं, मनुष्यनी ने त्रिंचनी नो अनाज का खोराक है। अनाज बिन थोड़ा शरीर ढीला पड़ जाए, मोड़ा पड़ जाए, हीन पड़ जाए, वो इंद्राणी को अनाज क्या खाए बिना उसके काल में अमृत बरसते हैं कंठ में से। ऐसे इंद्राणी का भोग परमानंद स्वभाव ऐसा तो जान, तो ये भोग भी सड़ा हुआ कुत्ता ने मिंदड़ा बिलाड़ा सड़ा हुआ है ऐसा लगेगा तेरे। समझ में आया? ऐसा कहते ना, ऐसा तुम अपना स्वभाव जान। भगवान का भगवान पासे रहा। अपना स्वभाव ही एक किला आनंद, एक किला चिद रूप ज्ञान रूप जिसका स्वभाव, उसको तुम अपना स्वभाव जान और क्या दृष्टि दे। करना हो तो आ करना है। समझ में आया? लाख शास्त्र पढ़ा हो तो आ करना था है। श्रीभूति अणगार, श्रीभूति आते हैं कि गुरु ये कहा माँ तुष माँ रुष, प्रभु तुम आत्मा है, कोई प्रति द्वेष नहीं करना, कोई प्रति प्रीति संतोष प्रीति नहीं करना। इतना शब्द भी याद न रहा, पर आत्मा याद आ गए अंदर रहा। समझ में आया? श्रीभूति आते हैं आओ, उसे दाखिला तो यही देते हैं। श्वेतांबर भी है तो दिगंबर का, श्वेतांबर भी दाखिल दृष्टान देते हैं तुष मास का। इसकी खबर नहीं। ये माँ तुष माँ रुष, तुष नाम प्रीति न करना, सब पर से रोष नहीं करना, बस इतनी वितरागता करना, ऐसा कहा था। इतना शब्द न रहा याद। तो कोई स्त्री उड़द धोती थी, उसका छिलका निकालती थी, सफेद दाल पिन करती थी। तो दूसरी स्त्री पूछते थे माँ क्या करते हैं भाई बहन?
कि मास तुष, मास नाम अड़द को तुष नाम पुत्र छिलका से भिन्न करते हैं। और उड़द की दाल को छिलका से भिन्न, इतना सुनकर भाषा याद नहीं थी उसको, सुनकर ओहो, मेरी चीज उड़द की दाल की जैसा सफेद, ऐसा आनंद खंड भिन्न में हूँ। और पुण्य पाप का विकल्प एक छिलका समान फोतरा है। हमारी भाषा का शब्द फोतरा कहते हैं, छिलका। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी छिलका है। जिन लोगों को ऐसे कहते हैं कि व्यवहार से नीचे होता है, प्रभु ऐसा है नहीं। तुम क्षेत्र जाएगा, बहुत चला जाएगा भाई, समझ में, ठगा जाएगा। ये नहीं, क्षेत्राते नहीं कहते, ठगा न कहते, क्षेत्राते नहीं कहते, क्षेत्रते हिंदी में नहीं आते। नहीं, ठीक है, ठगाना, समझ में आया। यहाँ कहते हैं कि एक बार प्रभु सुन तो सही, परमात्मा प्रकाश है। तेरी चीज तो अनंत आनंद ने, अनंत ज्ञान से भरा पड़ा तेरा स्वभाव प्रभु है ने। तेरी आनंद की दशा प्राप्त करने में पर की अपेक्षा है नहीं। ये राग भी व्यवहार रत्नत्रय का राग भी दुख रूप है। उसके भी तेरा आनंद की प्राप्ति में मदद सहाय है नहीं। व्यवहार अंतर का निमित्त कहते हैं, बाहर की पर्याय दूसरी को बाह्य निमित्त कहते हैं, पर वो निमित्त से अंदर होता नहीं। ये अपनी परिणति पर्याय जो है उसमें दूसरी चीज निमित्त हो, पर निमित्त से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ऐसा है वस्तु का स्वरूप है। ऐसे अंतर में निमित्त व्यवहार रत्नत्रय देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, पंचमहावर्त का विकल्प, शास्त्र पढ़ने का विकल्प, ये भी छिलका है। ये तेरी चीज में ये नहीं, और तेरी सन्मुख होने में उसकी सहायता नहीं। बात ये कि अंतर की चीज की उसको महिमा आती नहीं। जैसे बाह्य की महिमा आकर्षण करते हैं पर चीज, ऐसी अंतर स्वरूप का आकर्षण उसको है नहीं। बाहर की चीज अनुकूल शरीर देखे जवानी, हार का मांस रूपाला सुंदर और लक्ष्मी होए और सारा भोजन करते हो और हाथी पर बैठे हो, यानी उसके आकर्षण होता है। वो चीज नहीं प्रभु, तेरे आनंद का नाथ हाथी, उसके बैठना उसकी माध्यम आकर्षण है। जी ऐसा है भगवान। प्रभु तुम कौन है, ये कहते हैं ना। ऐसा तुम अपना स्वभाव जान, पांच इंद्रियों के विषयों को। आए तो परमात्मा, भगवान की वाणी ने परमात्मा को ही इंद्री कहने में आया है। इंद्री का विषय है तो इंद्री कहने में आया है। त्रणलोकना नाथ नहीं वाणी देव धनी परद्रव्य है ने। तो परद्रव्य को त्या 31 गाथा समय सार में इंद्री कहा है तो इंद्री का विषय, तो विषय को भी इंद्री कह दिया है। समझ में आया? इंद्री तो है
वो इंद्री का विषय है, विषय को इंद्री कह दिया, ऐसा कहा क्या? नहीं नहीं इस तीनों में इंद्री कह दिया। भाव इंद्री जो अंदर ज्ञान का सूक्ष्म का अंश एक एक इंद्री का एक एक विषय को जाने, वो भी भाव इंद्री गिनी है, खंड खंड है, ये गिनायक का स्वरूप नहीं। समझ में आया? जो खंड खंड जनाते हैं भाव इंद्रियों, तो जड़ है, पर जो भाव सूक्ष्म ज्ञान का अंश है, एक एक इंद्री एक एक विषय को जनाते हैं, उसका अर्थ अपना अखंड ज्ञान को खंड खंड जनाते हैं, तो वो भी पर नहीं है। अपना ज्ञायक ज्ञेय नहीं। समझ में आया? और द्रव्येंद्रिया जड़, तो जड़ प्रत्यक्ष है, या तो माटी है। जीवन होते छते आंखों बंद हो जाए, अंधा हो जाए, कान बहरा हो जाए, वो तो जड़ है। जड़ में खामी होने से मेरे में खामी हुई, ये बड़ी मानता विपरीत है। समझ में आया? पांच इंद्री जड़ का काम निमित्त का न करे जानने आदि में, तो मेरा अवयव में खामी आई है मानने वाला इंद्री को अपना अवयव माना है। समझ में आया? अपना अवयव तो भगवान त्रिकाल आनंद स्वरूप है, वो तरफ का झुकाव करके निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, ये आत्मा का अवयव है, ये अवयव है। अवयव तो जड़ का है, अवयवी शरीर और पांच इंद्रिय का फाका, उसका अवयव भाग है। कहते हैं पांच इंद्रियों के विषयों को, विषय नाम भगवान की वाणी को ही बिल्लक छोड़ दे। લોકોને એવું લાગે છે ને વ્યવહારનું, એમ કે આવા ત્રણ લોકના નાથની ભક્તિ પણ રાગ અને ભગવાન તરફ का लक्ष्य होता है वो राग। बापू प्रभु ये तो परद्रव्य है ना, समझ में आया? मोक्ष अधिकार में तो ये लिया है, मोक्ष पावर में 16वीं गाथा कहा था, पर दवाओं दू गई, ऐसा पाठ है। पर दवाओं दू गई, रणलोकना नाथ एम कहते हैं कि हमारा तरफ का लक्ष्य है, तेरे दुर्गति होगी, दुर्गति नाम राग होगा, ये चैतन्य की गति नहीं। नहीं आया? स्पष्ट करा फिर मौत पे ऐसे आया। भगवान अष्टपावर में कहते हैं, 16वीं गाथा है मोक्ष अधिकार की। पर दवाओं मोक्ष है ना, मोक्ष का अधिकार है ना, वो तो मोक्ष की पर्याय परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती। ऐसे मोक्ष का मार्ग भी परद्रव्य के आश्रय से नहीं होता। परद्रव्य के आश्रय से तो दुर्गति, अर्थात मोक्ष का मार्ग जो सुगति है, उसका फल मोक्ष सुगति है, उससे परद्रव्य का लक्ष्य करने से राग ये दुर्गति है। राग से तो गति मिलती है, गति है दुर्गति है। આવી વાત છે પ્રભુ સમજાય છે કાંઈ? એ ચૈતન્ય હીરો એને પરખ્યો નહીં, परख्या माणिक मोतियां, परख्या हेम कपूर, एक प्रभु आत्मा परख्या नहीं, कैसी ये चीज है? समझ में आया? वो कहते हैं
ये पंचेंद्री का विषय को छोड़ दे लक्ष्मी से, और विकल्प जालों को छोड़ दे। विकल्प जाल क्या, देखो व्यवहार रत्नत्रय भी विकल्प जाल है, समझ में आया? प्रभु तेरे घर में ले जाता है, समझ में आया? वो आते हैं ना भजन में, नहीं? अब हम कबहू न निज घर आए, अब हम कबहू न निज घर आए, पर गर्भ मत अनेक नाम धराए। मैं पुण्यवंत हूं, मैं पापी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, पर गर्भ मत ऐसा नाम धराया, वो चीज तेरी नहीं है। मैं पुण्यवंत हूं, मैं पुण्य करने वाला हूं, ये सब पर घर का भ्रमण है। निज घर कबू न आए, तेरी चीज आनंद का नाज प्रभु, जिसकी नजर करने से आनंद आता है और परद्रव्य का नजर करने से दुख होता है। जब भगवान की वाणी उत्तर लक्ष्य करने से राग होता है, राग होता है, दुख होता है, ये राग है। शेठ खुलासा कराते हैं जो सुनने में भी विकल्प है ना। भगवान मार्ग बहुत सूक्ष्म है, ये राग को तो दुख को भगवान आनंद मानते है क्या? वो बालक है ना, 6 महीना का बालक हो और उसकी माता में जेठ मास हो और डबल दूध पाया हो, दूध बहुत पाया हो, पीछे उसकी दिशा हो जाए जंगल शेरना, 10 हो जाए ठंडा, तो गर्मी में दिन उसको ठंडा आ रहा है, सुनाए दिखाए ये चाहते मजा है ना। बहुत बार देते हैं, बालक बैठा हो ना, शेरना हो, 1-2 बार વધારે પીવો અને ऐसा हो गया गर्मी का दिन हो, 10 हो जाए, नग्न शरीर हो, बालक है ना, कहना ठंडा लगे यहाँ तो हाथ भी लगाए तो ठंडा लगे, तो ऐसे चाहते। ऐसा भगवान राग का भोग विष्टा का चाटना है। समझ में आया? मजा राग में ऐसी है, ये विष्टा चाटन मजा मान ऐसी मजा है। आनंद नो नाद प्रभु, जिसको अनादर करके रागना प्रेम में फसा, ये व्यभिचारी जीव है। समझ में आया? परिस्त्री का व्यभिचारी हो तो थोड़ व्यभिचार है। यहाँ तो राग का एकत्व में मजा मानते हैं, व्यभिचारी है, मिथ्या दृष्टि व्यभिचारी है ये। समझ में आया? आगे बात है प्रभु, तेरी चीज में तो आनंद पड़ा है ना। वो तब का झुकाव छोड़कर पर में झुकाव, आई तो यही कहते हैं विकल्प जालों को छोड़कर तेरे राग में ठीक लगता हो छोड़ दे प्रभु। भगवान तेरे कलंक है। समझ में आया? जिससे भव मिले, भव कलंक है जीव में। योग सार में आया है, शर्म जनक जन्म।
माताना स्तनना दूध पीना एक कलंक है। प्रभु तेरे आनंद में आनंद पड़ा है न तेरे। जैसे गौ और भैंस का आव होता है ना, उसमें दूध पड़ा है तो निकालते हैं। निकालने में भी इसकी कला होती है। ऐसा नहीं निकाले, ऐसे निकाले। हाँ, यहाँ है ना खांडो, ऐसे निकालने से यहाँ चांदा पड़ जाता है। तो उसकी भैंस का वो क्यों कहवाई थन का आंचल, उसमें चांदा पड़ जाए, समझे। यहाँ तो हम तो बहुत दिखाए, बहुत हमारे घरी बहन के घरी भैंस था ना, बहन करती थी अच्छी थे। गया धर में 1 वर्ष रही थी, छोटी उम्र की बात है, 13 वर्ष की उम्र की, अच्छी पहले आप 74 वर्ष पहले की बात है। और बहन थे गया था ऐसे एम भगवान आत्मा आनंद का आव भरा है, उसमें एकाग्र होकर दूध का खेचने अंदर से। प्रभु तेरी शुद्धि तेरी पास है ना, पास क्या तू ही है। समझ में आया। अमरा करोड़पतियों बुतियों बधा दुखी छो, ऊँट भाई कैसे तो मैं हूँ सुखी हो, केम आई आई एम कैसी ना, ये कैसे है कसम है। आको था जी हसू सामू जोવો ને બોલો પૈસા આપતા કે બધું આકો થશે। ग्रस्त है। क्या हुआ धूल में, यहाँ तो अनंत लक्ष्मी पड़ी है, करोड़ में तो करोड़ में अबज कहते हैं इतना। यहाँ आए चाबी तो दे दो आप। हाँ चाबी भगवान तेरी चीज में तेरे सन्मुख करना है प्रभु, करने वाले को करना है न, है कोई भगवान कर दे। अने जो पर्याय उसकी है तो पर्यायवान में से पर्याय निकलती है, समझे। एक शब्द नहीं आते नियम साधना आवे छे, पर्याय वांद्रे। पर्यायी आत्मा ज्ञान बिना आत्मा का पर्याय स्वभाव क्या कहते हैं, पर्यायी ऐसा आत्मा, पर्यायी ऐसा आत्मा, इसका ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला है। राग द्वेष आदि पर्याय है ऐसा मानने वाला है। समझ आया। अंदर बंद है पर्यायी आत्मा ना, पर्याय वाला आत्मा ना, पर्याय स्वरूप आत्मा ना, ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव होता है, पर्याय दृष्टि वाला होता है। यूं कहते राग वाला ने एक समय की पर्याय वाला उससे 4 गति में रूप है। समझ में आया। नियम सार संसार दरिया भरा दरिया है, एक आते लोगों ने अभ्यास अभ्यास करते हैं। मैट्रिक LLB तो कितना वर्ष लगाते हैं, पाप है तो अज्ञान है चिल्ला है 15 आपने जान तो होते ही नहीं से लक्ष्य आता है। शास्त्र लक्ष्य कराते हैं इतना कि ये करते ये अंत में जाना, इतना लक्ष्य कराते, और वो लक्ष्य से अंदर नहीं जा सकते।
शास्त्र दिशा दिखाड़ी अलगा रहे, ऐसा पाठ है आनुगंधी कहते। समझ में आया? शास्त्र दिशा दिखाड़ी अलगा रहे, दूर रहे અને શ્રીમદમાં આવે છે છેલ્લે આવે શાસ્ત્ર લક્ષ થવાનો તેનો લક્ષ થવાને તેનો કયા શાસ્ત્ર સુખદાય ફક્ત લક્ષ આપો લક્ષ નો પ્રશ્ન સમજતા લક્ષ એટલે એના ખ્યાલમાં આવે પર લક્ષ એટલી વાત લક્ષ થવાને તેનો કયા શાસ્ત્ર સુખદાય એના ખ્યાલમાં એ આવે કે આ શાસ્ત્ર એમ कहते हैं कि तेरी दृष्टि लक्ष्य क्या जा, ऐसा लक्ष्य आ गया बस इतना। उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर जाए तो लक्ष्य में आ जाए, इतना कहने बात है। भाई मार्गा तो वितराग न सुना હમણાં કેશી બહુ તીર ગાતા બહુ તીર પૂરા કરવાનો રસ્તો માર્ગા 84 ના અવતાર બંધ કરના समझ में आया? तो दूसरा कहना था कि व्यवहार से निश्चय होता है तो यहाँ निषेध किया, विकल्प जालों को छोड़कर कहा है। बुरा कहते हैं कि व्यवहार से होता है तो व्यवहार से तो विकल्प रह गए। જેમ જેમ दुपोर को चली 85 में कि दरेक द्रव्य की जो क्रिया है ये परिणाम सब परिणाम स्वरूप है, અને परिणाम स्वरूप है वो परिणाम से भिन्न नहीं क्रिया, तो परिणाम अपनी पर अपने से हुई यूं कहते हैं। कोई निमित्त से होती है क्या? हम यहाँ कहते हैं कि विकल्प जाल छोड़कर अनुभव होता है, विकल्प जाल राग का विकल्प से नीचे होता है। बड़ी तकरार दो है, निमित्त से होता है व्यवहार से होता है, क्रमबद्ध नहीं बस। उपादान निमित्त नीचे व्यवहार कर्म 5 की बांधा है। यही बांधा मां एक ही खुलासा। एक बार ऐसा निर्णय कर दे कि पर्याय कर्म सर होती है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो ऐसे क्रम सर का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञाय को बढ़ जाती है। तो ज्ञाय को पर दृष्टि जाती है तब कर्म का निर्णय होता है। तो कर्म का निर्णय में भी व्यवहार से लक्ष्य गया ऐसा भी रहा नहीं। कर्म का क्रमबद्ध का निर्णय करने में 5वें का निर्णय हो जाता है। उपादान निमित्त नीचे व्यवहार क्रमबद्ध समझ में आया? क्योंकि पर्याय क्रम गुण जो है विस्तार अक्रम है, ऐसा गाथा है ना 94 प्रवचन सा विस्तार क्रम आयत क्रम, आयत सामान विस्तार सामान पर एम क्या मूल विस्तार लेना है। वस्तु में जो गुण है अनंत ऐसा विस्तार अक्रम एक साथ, तो पर्याय है एक साथ क्रम, तो उसका अर्थ हो गया आगे पीछे नहीं। जैसे अक्रम है अनंत गुण, जैसे एक द्रव्य में अक्रम विस्तार से है, ऐसा पर्याय आयत विस्तार है, ऐसा लंबाई होती है। पर वो एक होती है तो उसको आयत कहते हैं। समझ में आया? तो ये क्रम सर ऐसा निर्णय करे तो पर्याय में क्रम सर है, तो उसका निर्णय पर्याय में द्रव्य के आश्रय से होता है। तो द्रव्य के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो 5वें का आगे न्याय आ गया कि निमित्त से होता नहीं, क्योंकि क्रमसर पर्याय है। अगर क्रमसर का निर्णय करने में द्रव्य पर गई तो राग का जो व्यवहार राग है उसका लग छोड़ दिया, क्या गई तो व्यवहार से नीचे होता ये भी रहा नहीं।
અને ક્રમબદ્ધ હાવ हो गया। एक शब्द में 5 का खुलासा है। कौन शू करे प्रभु कोने के। अरे श्रीमद कहते थे एक बार गृहस्थाश्रम में थे और आत्मज्ञान हुआ। संसार के व्यापार लाखों का व्यापार था जवेरात का। जवेरात श्रीमद राजचंद्र का। तो एक बार कहते थे घरे मेरा वचन का नाद कौन सुनेगा। मैं जो कहता हूँ तत्व ही कौन सुनेगा, नाद कौन सुनेगा। क्योंकि लोग बाहर की रुचि में पड़ा है। मैं जी गृहस्थाश्रम में हूँ। बाहर ना त्याग वाला ना वचन नो जो मातम लोग ने लागे भले अज्ञानी हो। ऐसे कहते अरे ज्ञानी ने सम्यक दृष्टि था। ये क्या अवतारी हो गई है। एक भोग करके मोक्ष जाने वाला है। श्रीमद राजचंद्र अभी स्वर्ग में है। પોતે કહી ગયે ને ऐसा है ही ऐसा। अशेष कर्म नो भोग छे भोग भोगो अवशेष જેથી દે એક ધારીને जासों स्वरूप स्वदेश। ऐसा लगता है कि हजी कर्म का राग का भोगना भी पड़ता है। ऐसा दिखता है हजी राग छूटते नहीं। पूर्ण अशेष कर्म का भोग भोग अवशेष थोड़ो का राग को भोगना ऐसा काम दिखते हैं। જેથી દે એક ધારીને एकाध देह भविष्य में ये देह मनुष्य का, स्वर्ग का देह को गिनने में नहीं आता। समझे? साधक का भाव मनुष्य का गिनने में आता। यहाँ से तो स्वर्ग में भी पीछे देख धारी ने जासु स्वरूप स्वदेश। अपना स्वरूप संग प्रदेशी भगवान स्वदेश एमा हम एक भाव करके समा जाएगा। गृहस्थाश्रम तो उसमें क्या गृहस्थाश्रम क्या था अंदर आत्मा में। समझ में आया? आए तो हमला विकल्प जलाया ने तो व्यवहार से भी नीचे होता नहीं ऐसा यहाँ कहा। विकल्प की व्यवहार की लक्ष्य छोड़कर अंतर में जहाँ प्रभु परम समाधि में स्थिर होकर विकल्प जान किया ये दुख है। आ बाजू गए तो परम समाधि शांति है। परम समाधि में स्थिर होकर क्या कहते हैं ध्यान रखो। निज आत्मा का ध्यान कर ત્યારે तेरे आत्मा उपाधि हो जाएगा। तेरी अनुभूति की परिणति से आत्मा का अनुभव कर, ત્યારે आत्मा अनुभव में आने वाला आत्मा ऐसा आ गया। समझ में आया? तो कल कहा था ना राग के अनुभव के काल में एकला राग का अनुभव है, उसको भगवान आत्मा ही है। समझ में आया? एकला राग का अनुभव है पुण्य का, उनकी रुचि में पड़ा है, उसको भगवान आत्मा ही हो गया है। और जिसको आत्मा उपाधि हो गया, परिणति में आत्मा उपाधि हो गया, उसको राग ही ऐसा कहना न पड़ा। बिन रह
समझ में आया? प्रभु मार्ग तेरा ऐसा है, वितराग का मार्ग को तेरा मार्ग को एक ही है। हाँ, ये 71 हुई। એ રીતે ગાથા 71 નો વિસ્તાર પૂરો થયો. પૂજ્ય ગુરુદેવે આ ગાથા અને એની સાથે બીજા કેટલાય શાસ્ત્રોની વાત આપણને સમજાવી. આજના ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી એક બે વાત આપણે લઈશું. પારા નંબર 275 ઉપર ગુરુદેવે એક વાત એકત્વ વિશે કરી. રાગના એકત્વમાં મજા માને એ વ્યભિચારી છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ વ્યભિચારી છે. રાગના એકત્વમાં, હવે રાગ થવો અને રાગનું એકત્વ એ બે વસ્તુ જુદી છે. રાગ તો જ્ઞાની ધર્મીને પણ થાય, રાગ તો જ્ઞાનીને પણ થાય, ધર્મીને પણ થાય. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી રાગ હોય, એને છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી તો બુદ્ધિપૂર્વક હોય, અને અબુદ્ધિપૂર્વક તો એ પછી સાતમા ગુણસ્થાને પણ હોય. પરંતુ આપણે જે બુદ્ધિપૂર્વકના રાગનો જ વિચાર કરીએ તો એ રાગ તો છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી હોય, મુનિને પણ હોય. શુભભાવ તો હોય, પણ એ શુભભાવમાં રુચિ નથી. શુભભાવ ઈષ્ટ છે એવી બુદ્ધિ નથી. રાગ થાય છે પણ રાગમાં ઈષ્ટ બુદ્ધિ નથી. એટલે રાગને એ હેય બુદ્ધિ એ લે છે, રાગના સ્વામી થતા નથી. અને જે પણ રાગ થયો, શુભભાવ થયો હોય તો પણ એ છોડી અને સ્વભાવ ભાવે થવાનો હંમેશા પુરુષાર્થ હોય. એટલે એમને રાગ સાથે એકત્વ નથી. મિથ્યા દ્રષ્ટિને રાગ સાથે એકત્વ છે. એટલે રાગના એકત્વમાં મજા માને એ વ્યભિચારી છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ વ્યભિચારી છે એમ કહ્યું. હવે વ્યભિચારી જે કહ્યું એ વ્યભિચારી કઈ રીતે? રાગના એકત્વમાં એટલે શુભભાવ થયો હોય અને શુભભાવમાં એને સારું લાગે. આજે તો એટલે સુધી વાત આવી, કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો ગુરુદેવને ને એમ કહ્યું કે આપની આ વાણી જે છે એનાથી અમને તો આનંદ આવે છે એવી વાત કરી. ત્યારે ગુરુદેવે આ બધી વાત કરી. ત્યારે એવો પ્રશ્ન થયો ત્યારે આ બધી વાત કરી કે એ આનંદ નથી. અને એમાં પેલા બાળકનું ઉદાહરણ આપી અને વધારે સમજ આપી. એ તો બધું રાગ છે અને એમાં આનંદ માણે તો વ્યભિચાર છે. તો વ્યભિચાર કઈ રીતે? વ્યભિચાર આત્માના સ્વભાવની અપેક્ષાએ, સ્વભાવ સિવાય બીજા ભાવે થવું. પોતાનો જે સ્વભાવ છે, અનંત ગુણને અનુસરીને જે સ્વભાવ છે એ સિવાય બીજા ભાવે થવું, અને એ બીજા ભાવે થાય એમાં પાછા આનંદ માણે. થયા છે વિભાવ ભાવે, ભલે શુભ ભાવ હોય કે અશુભ ભાવ પણ છે તો વિભાવ ને. એટલે આત્માના સ્વભાવથી બીજા ભાવે થવું, જેમાં સ્વભાવ ભાવનો તો ઘાત થાય. સ્વભાવ ભાવને છોડી અને બીજા ભાવે થઈ અને એમાં આનંદ થવો, એ વાતને વ્યભિચાર કર્યો. સ્વભાવ ભાવમાં આનંદ હોય એને સ્થાને સ્વભાવ ભાવથી છૂટી અને બીજા અન્ય ભાવે થવું ને એમાં આનંદ માણવો. જેમ આપણે પેલું હિંસાનો આનંદ જેમ કહીએ છીએ ને એવી રીતે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત થાય અને પાછો આનંદ, એટલે એને વ્યભિચાર કર્યો. એવું મિથ્યા દ્રષ્ટિનો હોય, સમ્યક દ્રષ્ટિનો હોય નહીં. એ પછી એક બીજી વાત છે, પારા નંબર 276 ઉપર અહીંયા ચોથા પેરેગ્રાફની અંદર ગુરુદેવે વાત લીધી છે. પેલા મુમુક્ષુએ કહ્યું કે
આ પોતાના સ્વરૂપમાં પડેલી આનંદની લક્ષ્મી એને પ્રાપ્ત કરવાની ચાવી આપી દો. અને એના ઉત્તર તરીકે ગુરુદેવે વાત કરી કે ભગવાન તારી ચીજની તારે સન્મુખ થવાનું છે, કરનારે કરવાનું છે. કોઈ ભગવાન કરી દે એટલે બીજો કોઈ કરી દે એમ નથી. અને પછી એમાં એમ કહ્યું કે જે પર્યાય એની છે તો પર્યાયવાનમાંથી પર્યાય નીકળે છે, એટલે બીજો કઈ એની પર્યાય કરાવી દે એમ તો બને નહીં. એ પર્યાય એની છે. અને પછી ત્યાં એમ વાત લીધી, નિયમસારની 15મી ગાથાની વાત એક લીધી છે કે પર્યાયવાન દ્રવ્ય એટલે એને પર્યાયી કહેવાય. એને પર્યાયી કહેવાય. તો આત્માને પર્યાયી કહ્યું. પર્યાયી આત્મા એ પર્યાયી આત્માના જ્ઞાન વિના આત્મા પર્યાય સ્વભાવ વાળો હોય છે. શું કહ્યું છે? પર્યાયી આત્માના જ્ઞાન વિના આત્મા પર્યાય સ્વભાવ વાળો હોય છે. પર્યાયી એવો આત્મા એના જ્ઞાન વિના આત્મા પર્યાય સ્વભાવ વાળો હોય છે. રાગ દ્વેષ આદિ પર્યાય પોતાની છે એમ માનના રાખે. એટલે પર્યાયી આત્મા આ પર્યાય વાળા આત્માના પર્યાય સ્વરૂપ આત્માના જ્ઞાન વિના આત્મા પર્યાય સ્વભાવ વાળો છે, એટલે પર્યાય દ્રષ્ટિ વાળો હોય છે એમ કે છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરવાની છે, પર્યાય દ્રષ્ટિ છોડવાની છે. એ વાત તો આપણે ઘણી વાર સમજ્યા. વર્તમાનમાં જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નથી ત્યાં સુધી જીવને પર્યાય દ્રષ્ટિ જ કહેવાય. સમ્યક દર્શન થયા વિના એને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કહેવો એ ઠીક નથી. એ પુરુષાર્થપૂર્વક સવિકલ્પ પ્રથામાં એ પર્યાયની દ્રષ્ટિ છોડતો હોય, પણ એ પુરુષાર્થપૂર્વક એટલે સમજીને, પણ એ બધું વિકલ્પ સહિત છે. જે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એ તો સહજ જ એ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ હોય છે. એટલે કોઈ પણ પર્યાય છે તો એ પર્યાયમાં એને તો દ્રવ્ય જ દેખાય કે આ દ્રવ્યની પર્યાય છે. અને કોઈ પણ દ્રવ્યની પર્યાયને ન જોતા એ દ્રવ્ય સામે જોઈએ તો દ્રવ્ય તો માત્ર 6 પ્રકારના જ છે, અને એમાંય પેલા 4 તો કઈ ખ્યાલમાં આવતા નથી. પેલા 4 જે છે તો ખ્યાલમાં આવતા નથી. જે ખ્યાલમાં આવે છે તો પૂતગળ છે એની બધી પર્યાયો એને ખ્યાલમાં આવે છે. જીવ પણ ખરેખર જીવ ક્યાં દેખાય છે? એટલે જીવને વિશે પણ કદાચ એના જે વિભાવ ભાવ વગેરે છે તો એ એની પર્યાય છે, તો એનો એને ખ્યાલ આવતો હોય તો પણ એ એની પર્યાયને જુએ છે. ત્રિકાળી વસ્તુને તો ક્યાં જુએ છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ પોતાની ત્રિકાળી વસ્તુનું ભાન ન હોય તો બીજા જીવને એ ભગવાન આત્મા ક્યાંથી જાણવાનો છે? એટલે એની દ્રષ્ટિ કેવી હોય? વર્તમાન પર્યાય ને જાણવા વાળી દ્રષ્ટિ હોય ને. અને જે પર્યાયમાં જ રોકાઈ ગયો છે અને દ્રવ્યનો વિચાર જ નથી કરતો, એ શુભાશુભ ભાવે જ પરિણમે. એટલે એને ભવના ભ્રમણ જ હોય, બીજું કાંઈ હોય નહીં. તો એવી પર્યાય દ્રષ્ટિ છોડાવીને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરાવવા માટે શાસ્ત્રમાં વારંવાર કહેવામાં આવ્યું. અને અહીંયા જે વાત લીધી છે એ પણ એ જ વાત લીધી છે કે પોતે ભગવાન આત્મા છે, એ પર્યાયી છે. અને એવા પોતાના પર્યાયી આત્મા ના ભાન જ્ઞાન વિના એ પર્યાય સ્વભાવ વાળો છે, એટલે કે પર્યાયનું લક્ષ કરે છે. તો એ દ્રષ્ટિને છોડવી છે. એટલે કે છે કે પર્યાય દ્રષ્ટિ વાળો હોય છે, એમ કે છે રાગ વાળો અને એક સમયની પર્યાય વાળો, અને એનાથી 4 ગતિમાં રખડે છે. તો આ જે વાક્ય રચના જે રીતે હતી એ રીતે જરા અટપટું લાગે એટલે આપણે આ વાત લીધી છે.